Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa nabiyina wa shafiina bil qasim Muhammad. کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے، جو موت اور حیات کا مالک ہے، کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہی خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں. دین اسلام ہے. عزیزان گرامی، ایک شخص نے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا دین کیا ہے؟ آپ نے کہا دین 5 خصلتوں کا نام ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور 5واں میرے دادا علی کی ولایت. کہنے لگا اچھا مولا، اس میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہے؟ کہنے لگا نماز وزنی ہے. آپ نے کہا نہیں. کہنے لگا روزہ وزنی ہے. آپ نے کہا نہیں. کہنے لگا حج وزنی ہے. آپ نے کہا نہیں. کہنے لگا تو مولا ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہے؟ آپ نے کہا ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہے وہ ہے میرے دادا علی کی ولایت. کہنے لگا وہ مولا، نماز اللہ کی ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہلکا ہو گیا، حج اللہ کا ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کی ہلکی ہو گئی، اور آپ کے دادا علی کی ولایت وزنی ہو گئی. امام نے کہا اللہ تمہاری ہدایت کرے. نماز سفر میں قصر ہے، روزہ مریض نہ رکھے، حج پر مسکین نہ جائے، زکوٰۃ غریب نہ دے. واحد میرے دادا علی کی ولایت ایسی ہے جو غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے، غالب پر بھی واجب ہے، ناغالب پر بھی واجب ہے. صلوات پڑھے محمد علی. عزیزان گرامی، کون علی؟ کہ وہ علی کہ جس کے فضائل و کمالات اس قدر ہیں کہ اگر ساری کائنات بھی مل کر بیان کرے تو بیان کرنے سے قاصر ہوگی. لہذا فضائل و کمالات علی ابن ابی طالب نہ تو کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ خود رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کسی نے نہ پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہ پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. لہذا رسول کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فضائل و کمالات علی ابن ابی طالب نہ تو کوئی بشر سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی بیان کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ اللہ ہے یا اس کا رسول ہے. صلوات پڑھیں محمد علی. عزیزان گرامی، آج مجھے آپ کے سامنے حضرت علی کی جنگ خیبر کا واقعہ سنانا ہے کہ خیبر کا میدان ہے، مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ ہے، تجسس کا ایک عالم ہے. رسول نے 40 دن کا اعلان کیا کہ 40 دن میں فتح کروں گا. 39 دن گزر گئے، رسول نے سب کو بھیج کر دیکھ لیا، سب کے سب بھاگ کر آ جاتے تھے. فتح دور دور تک ممکن نہیں تھی. اب رسول نے عشاء کے بعد اعلان کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور رسول نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں فتح لکھی ہوئی ہے، وہ جائے گا اور خیبر فتح ہو جائے گا. اب رسول اعلان کر کر اپنے خیمے میں چلے گئے. اب صحابہ پوری رات جاگتے رہے، سوچتے رہے کل علم کس کا ہوگا، کل خیبر کس کا ہوگا،
कल आलम दो आलम में चर्चा किसका होगा? मीकाईल भी, जिब्राइल भी, सलमान भी, सबके सब मुंतजिर है कि कोई जरी आने वाला है। नगाह सामने से एक गर्द उड़ती हुई दिखाई दी। अब मैं क्या करूं? अली घोड़े से आए तो अल्लाह घोड़े की सुमों की कसमें खाए, अल्लाह घोड़े के फर्राटे भरने की कसमें खाए। अब अमीर अल मोमिनीन आए, रसूल बा खुशामदीद मेरे भाई। अब अमीर अल मोमिनीन ने रसूल से इजाजत ली और मेरे मौला मैदान की तरफ चले। अब अली जो आज अलम लेकर गए थे उसका नाम उकाब था। किताबें कहती है अली ने कोई अलहदा झंडा या परचम नहीं उठाया था, अली ने अपने नेज़े को अलम बनाया था। यानी नेज़े की जो अनी होती है उसे नीचे की साइड रखा और उसकी दूसरी साइड अली ने एक कपड़ा उठाकर बांधा। अली ने अपने नेज़े को अलम बनाया। अब जब ये मंजर रसूल की महफिल में बैठे हुए साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये क्या? अली को चाहिए कि वो अलम इस्लाम को लेकर जाए। अज़ीज़ान ग्रामी, इन्हें खबर नहीं थी कि हजरत अली को इस अलम के साथ काम क्या करना है। अब अली जो अलम लेकर गए थे उसका नाम उकाब था। अब हजरत अली किले खैबर के नजदीक पहुंचे। अब इधर से खैबर के यहूदियों ने अपनी छतों पर चढ़कर हैदर कर्रार को आते हुए देखा। अली का घोड़ा यूं हवाओं को चीरता हुआ आसमानी बिजलियों को ललकारता हुआ आगे बढ़ा था। सलावत पढ़े। करीब दरवाजे पर पहुंचे। अब अली ने वही नेज़ा जिसका अलम बनाया था, अली ने उसे हवा में फेंका। अलम को हवा में फेंकना था। अब अलम की अनी यूं ही पत्थर के साथ टकराई तो यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, तौरात को चाहने वाला, एक सबसे बड़ी खिड़की पर बैठा हुआ था। इसने हैदर कर्रार के हाथ से उड़ता हुआ अलम देखा। इसने देखा अलम की अनी जो ही पत्थर के साथ टकराई, अलम की अनी का पत्थर के साथ टकराना था। इसने तेजी के साथ अपनी खिड़की को बंद किया, तौरात को उठाया, रहल पे रखा और दौड़ा। दौड़ने का नाम आना था। बाकी सिपाहियों ने कहा तू कहां जा रहा है? तेरे कहने पर तो हम जंग करते हैं, तेरी दी गई बशारतों के साथ तो हम मैदान में उतरते हैं, तुम मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है? इसने कहा मुझे खुदा की कसम, मुझे खुदाए मूसा की कसम, जो आएगा यही फातह खैबर है, यही खैबर को फतह करेगा, यही हैदर कर्रार है, यही कातिल मरहबो अंतर है, यही कातिल मरहबो अंतर है। अब इन्होंने पूछा तुझे कैसे पता? इन्होंने पूछा तुझे कैसे पता? इसने कहा मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी का जानशीन वो होगा जो पत्थर में अलम को गाड़ेगा। यही कातिले मरहबो अंतर है, यही हैदर कर्रार है। अब हजरत अली न किले काबूस पे रुके थे, न किले याबूस पे रुके थे। अली आए थे किले खैबर के दरवाजे पर। किले खैबर के दरवाजे पर पहुंचकर अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, यहूदियों को क्यों भेज रहा है? खुद क्यों नहीं आता? तो मरहब का छोटा भाई हारिस जो इसी की तरह कदावर था, लोहे की जिरा में लिपटा हुआ बाहर आया। इसका बाहर आना था। यहाँ से अमीर अल मोमिनीन ने नियाम से जुल्फ़िकार को निकाला। जुल्फ़िकार को निकालना था। जुल्फ़िकार दो मुंह वाली थी। अली ने जुल्फ़िकार को हारिस की जानिब बढ़ाया। हारिस की जानिब बढ़ाना था। जुल्फ़िकार ने अपने दोनों मुंह को खोला। जुल्फ़िकार ने अपने मुंह में हारिस की गर्दन को जकड़ा और जकड़ने के बाद हारिस को जमीन पे फेंका। जमीन पे फेंकना था। अब अली ने अपने नेज़े को हारिस के सीने में गाड़ा। सलावत पढ़ो। खैबर के यहूदियों में भगदड़ मच गई। हारिस कत्ल हो चुका था। अंतर तेजी के साथ बाहर आया। जितनी तेजी के साथ बाहर आया था उतनी ही तेजी के साथ अली ने कत्ल किया। इसका वासिले जहन्नुम होना था कि जिस कुर्सी पर मरहब बैठा था उसने खिड़की को खोलकर
बदन पे कोई जगह खाली नहीं थी जहां पर लोहा ना हो। इसके हाथों में लोहे के दस्ताने थे। ये 2 गुर्जों के साथ यूं अपनी हैबत के साथ चलता हुआ आया। इसने किले खैबर के दरवाजे को खोला। खोलने के बाद ये अली के सामने आया। इसका अली के सामने आना था। इसने कहा, तूने मेरा भाई हारिस मारा, तूने मेरा भाई अत्तर मारा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम मरहब है। अब अली ने मरहब को ऐसे देखा जैसे कोई बुलंदी से जमीन पे रेंगती हुई चींटी को देखता है। अली ने मरहब को ऐसे देखा जैसे कोई जमीन पे रेंगती हुई चींटी को देखता है। अली ने कहा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जिसकी बारे में नाम है जर्रता। ग्रामी अली ने इसे माँ कहकर इसलिए कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा क्योंकि इसकी माँ ने कहा था कभी हैदर से न लड़ना। अब हैदर की रेत जो ही इसके कानों से टकराई, ये पिछले कदमों दौड़ा। दौड़ने के बाद इसने वापस अपने आप को किले के अंदर बंद किया कि अब इसके सामने एक बूढ़ा यहूदियों के लिबास में आया। उसने कहा, कहाँ जा रहा है? इसने कहा, बाहर हैदर आ गया है और मेरी माँ ने कहा था कभी हैदर से न लड़ना, हैदर ही तेरा कातिल है। इसने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? खैबर के यहूदियों के बच्चे और औरतें तेरा मजाक उड़ाएंगी कि इतना बड़ा बहादुर होकर एक 26 साल के नौजवान से डर गया। इसने कहा, तो मैं क्या करूं? मेरी माँ ने कहा था कभी हैदर से न लड़ना। इसने कहा, जरा सोच, क्या हैदर नाम सिर्फ एक ही फर्द का होता है? अरे जो तेरा कातिल होगा वो कम से कम तुझ जैसा तो होगा, ये तो कोई और हैदर है। अब मरहब के जहन में ख्याल आया कि हाँ बात तो ठीक है, ये तो कोई और हैदर है। अब मरहब पढ़ता, अब किताबें कहती हैं इसका रास्ता जिसने रोका वो यहूदियों का कोई बूढ़ा नहीं था, वो यहूदियों का कोई आलिम नहीं था, वो शैतान था, वो इब्लीस था जिसने इसने मरहब को आधे रास्ते से अली के मुकाबले पर भेजा। अब उलमा ने ये बात लिखकर पूरी दुनिया को साबित कर दी कि अली के मुकाबले पर अब जब जो जहां जैसे भी आएगा वो किसी ना किसी शैतान का भेजा हुआ होता है। सलावत हजरत अली ने कहा, हमारा दस्तूर है हम दुश्मन पर कभी पहला वार नहीं करते। इसने कहा, नहीं पहले तुम वार करो बाद में मैं करूंगा। हजरत अली ने कहा, बाद में तू रहेगा तो करेगा ना। अब एक मरतबा मरहब को जलाल आया, ये अपने दोनों गुर्जों को अपने सर के बराबर लाया। ये चाह रहा था कि सरे अक़दस अमीर अल मोमिनीन पर वार करे कि हजरत अली ने अपनी निगाहें मरहब की निगाहों में डाली। मरहब को अली की निगाहें अपने दिमाग की रगों में सनसनाती हुई महसूस हुई। मरहब के जिस्म में कपकपी तारी हुई। इसके सर का गुर्ज वहीं पर खड़ा था कि यहाँ हैदर कर्रार का हाथ उठा। जुल्फ़िकार मचलती हुई हजरत अली के हाथ से बाहर आई, जुल्फ़िकार मचलती हुई बाहर आई। अब जैसे गहवारे में अली के हाथों ने अजदर को चीरा था, ऐसे जुल्फ़िकार मचलती हुई हजरत अली के हाथ से पर आई। जुल्फ़िकार मचलती हुई मरहब के सर पे आई। मरहब के सर के पत्थर के खोद को काटते हुए, खोपड़ी को चीरते हुए, जबड़ों से होते हुए, सीने से होते हुए, दागों को काटती हुई जो ही जमीन की तरफ जा रही थी, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। ए जिब्रील जाओ और जुल्फ़िकार के नीचे अपने पैरों को बिछा दो। अगर ये ऐसे ही चलती रही तो ये 6 जमीनों को काट के आखिरी हद तक चले जाएंगे। मरहब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था कि अल्लाह ने उसी दिन वादा कर लिया कि अली तेरी तकसीम इतनी प्यारी
जारी है कि अब जन्नत और दोज़ख अब तू ही तकसीम करेगा, जन्नत और दोज़ख अब तू ही तकसीम करेगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अब खैबर के यहूदियों ने जैसे ही मज़हब को कट के दो हिस्सों में गिरते हुए देखा कि खैबर के यहूदियों की चीखें बुलंद हुई, चीखों का बुलंद होना था कि इन्होंने चारों ओर से अमीर अल मोमिनीन पर वार करना शुरू किया। हजरत अली के एक हाथ में ढाल थी जिससे वो तीरों के वार को रोक रहे थे, एक हाथ में जुल्फ़िकार थी। अब एक यहूदी ने नेज़ा मारकर अली की ढाल को गिरा दिया। अब जैसे ही यहूदियों ने देखा कि अली के हाथ में ढाल नहीं है, इन्होंने एक साथ हमला करना शुरू किया। छत वालों ने तीर बरसाए, जमीन वालों ने नेज़ा मारना शुरू किया। हजरत अली ने एक मर्तबा दाएं देखा और एक मर्तबा बाएं देखा। रसूल बुलंदी पर खड़े होकर अली की जंग देख रहे थे। अब किताबें कहती हैं जैसे ही अमीर अल मोमिनीन ने देखा कि उनके हाथ में वो ढाल नहीं है जिससे वो तीरों के वार को रोक रहे थे, वो ढाल जमीन पर गिर रही है। अब हजरत अली ने ढाल को जमीन से झुककर नहीं उठाया, क्योंकि वो अली ही क्या जो झुक जाए। सलावत पढ़े। अली ने झुककर ढाल को जमीन से नहीं उठाया। अली ने दाएं और बाएं देखा। अब सामने किले खैबर के दरवाजे पर अली की नजर पड़ी। अली की नजर पड़ना था। अली ने अपनी उंगलियों को खैबर के दरवाजे पर रखा, उंगलियों का रखना था। अब जो ही उंगलियां हटाए, जो ही उंगलियां हटी तो खैबर का दरवाजा अली की उंगलियों पर था। अब यहूदियों ने जैसे ही हजरत अली के हाथों पर किले खैबर का दरवाजा देखा, जिसे 80 लोग मिलकर खोलते थे और 80 लोग मिलकर बंद करते थे, उसे हजरत अली ने यूं दो उंगलियों से जैसे कोई दरख्त के पत्ते को तोड़ा जाता है, अली ने ऐसे किले खैबर के दरवाजे को निकाला। सलावत। खैबर के दरवाजे को निकालना था कि रसूल की बज़्म में खड़े हुए सहाबा ने अब जो ही हैदर कर्रार के हाथों पर खैबर का दरवाजा आते हुए देखा, इनके बदनों पर लर्जा आया। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने बदर में लड़ता अली देखा, हमने हो ओहद में लड़ता अली देखा, हम ये मानते थे कि अली की तलवार बड़ी चलती है, हम ये जानते थे कि अली की जुल्फ़िकार बड़ी चलती है, मगर या रसूल अल्लाह ये क्या? अली ने इतना मनोवजनी दरवाजा अपनी उंगलियों पर कैसे उठा लिया? तो रसूल ने फरमाया अली मैदान जंग में जंग नहीं लड़ रहा, अली दुनिया को अपनी फजीलतें बनवा रहा है। सलावत पढ़े। अली ने पहले इय्याका नस्तईन का मतलब समझाया कि अल्लाह मोहम्मद की मदद भी करे तो मेरे जरिए से करता है। फिर अली ने चश्मे ज़दन में आकर बताया कि वो जिन्होंने तख्ते बिल्किस मंगवाया था, मैं कुल्ले इल्म हूँ जो चश्मे ज़दन से होकर खैबर के मैदान में पहुंचा। फिर अली ने मरहब को 2 हिस्सों में तकसीम करके बताया कि मेरा हाथ अली का हाथ नहीं, यदुल्लाह का हाथ है। सलावत पढ़े मोहम्मद। कोई मुल्ला उठकर ये न कह दे कि अली ने जिस्म की वजह से खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था, अली ने ताकत की वजह से खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था। अली का हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ था। अब हजरत अली ने लोहे का मनोवजनी दरवाजा अपनी 2 उंगलियों पर उठाया तो कुरान फरमाता है कि लोहा मोम करना दाऊद नबी का मौजज़ा है। नबी ने बुलंदी पर खड़े होकर अली की तरफ देखकर कहा दाऊद लोहा मोम करता था, तो इसका नाम लेकर सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अली ने खैबर के दरवाजे को अपनी
2 उंगलियों पर उठा लिया। अज़ीज़ान गिरामी, खैबर के किले के और मैदान के दरमियान एक खंदक थी जो यहूदियों ने बनाई थी। अब किताबें कहती हैं कि जब खैबर के किले के दरवाजे खुले और दरवाज़ों के बाहर खड़े सहाबा ने अंदर सोने और चांदी के अंबार देखे। मक्का से हिजरत करके आ रहे लोगों ने यूं मुद्दतों की धूप के बाद यूं सोने और चांदी के अंबार देखे, मगर ये अंदर जाते कैसे? क्योंकि इनके और किले के दरमियान एक खंदक थी। ये खंदक को पार कैसे करते? तो तारीखों के जुमले हैं, एक मरतबा अली खंदक में कूद गए और अली ने वही दरवाजा जो अपनी उंगलियों पर उठा रखा था, अली ने उसे खंदक के ऊपर रखा। रसूल ने लश्कर से कहा कि इस दरवाजे से होकर गुजर जाओ। अब गुजरते हुए लोगों ने समझा, तारीख ने समझा कि अली ने दरवाजे के साथ एक पुल बनाया था। यहाँ रसूल ने अलमी सूरत बता दी कि यहाँ खैबर के किले के और मैदान के दरमियान एक पुल है, वहाँ जन्नत के और दोज़ख के दरमियान भी एक पुल है। ये पुल भी अली की वजह से पार होगा, वो पुल भी अली की वजह से पार होगा। अगर ये अली ना होते तो दावत ज़ुलशीरा के मौके पर रसूल की रिसालत की गवाही देने वाला ना होता। अगर ये अली ना होते तो शबे हिजरत रसूल की जान के लाले पड़ जाते। अगर ये अली ना होते तो गदीर के मिंबर पर मोमिनों का कोई मौला ना होता। अगर ये अली ना होते तो खुद रसूल की तजहीज़ व तकफीन ना होती। अगर ये अली ना होते तो फातिमा को कोई कफू ना होता। अगर ये अली ना होते तो रसूल का कोई दामाद ना होता। अगर ये अली ना होते तो दरे खैबर होता, उखाड़ने वाला ना होता। अब सुनिएगा, मैं मौला अली के फजाइल पढ़ रहा था, आपने से किसी ने भी मौला अली को दाद दी नहीं, किसी ने भी कहा सुभान अली नहीं कहा। क्यों? मैं मौला अली के फजाइल पढ़ रहा था, मैं कह रहा था अली कुल्ले ईमान, अली मर्द मैदान, अली वारिस कुरान। मेरा मजमा झूम झूम कर कह रहा था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया आए और पैसे जिक्र करना तो भाई इबादत है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फर्श अज़ा पर बैठना भी इबादत है। अब तो आप इस बात को मानते हैं ना, इस फर्श अज़ा पर बैठना इबादत है, क्योंकि ये वो फर्श अज़ा है कि जिसकी पहचान हुसैन ने जंगल में बना दी और ऐलान कर दिया, जो कौम नीचे बैठकर भी ऊंची नजर आए उसे कौम हुसैन कहते हैं, और जो कौम बुलंदी पर बैठकर भी नीची नजर आए उसे कौम अज़ीम कहते हैं। तो नेमत समझ कर आओ, क्योंकि ये फर्श अज़ा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और ये हर किसी को नसीब नहीं होती, मुकद्दर की बात है। इसलिए जब भी इस फर्श अज़ा पर आए तो नेमत समझ कर आए। और हमारी मजलिसों का एक फ़ायदा और भी है कि हमारे यहाँ मजलिसों में ऐसी चीज़ें बयान होती है जो दुनिया में आपको और कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिलेंगी, और ऐसी चीज़ें बयान होने लगती है तो दुनिया एतराज़ करने लगती है कि भाई इनकी मजलिसों में होता क्या है, इनकी मजलिसों से फ़ायदा क्या है, इनकी मजलिसों में होता क्या है। मैं कहूँगा अरे भैया इसमें एतराज़ करने की क्या ज़रूरत है, इसमें हसद करने की क्या ज़रूरत है, इसमें दुश्मनी करने की क्या ज़रूरत है। आओ मैं बताता हूँ हमारे यहाँ मजलिसों में क्या क्या बयान होता है। रिसालत का जिक्र मजलिस में, इमामत का जिक्र मजलिस में, नबूवत का जिक्र मजलिस में, नमाज का जिक्र
अय्यूब का जिक्र मजलिस में, अगर दुश्मनी हो तो ये कहना, ये मत कहना कि वो मजलिसों का दुश्मन है, बल्कि ये कहना वो आदम का भी दुश्मन है, वो नूह का भी दुश्मन है, वो इब्राहिम का भी दुश्मन है, वो मूसा का भी दुश्मन है, वो ईसा का भी दुश्मन है, वो याकूब का भी दुश्मन है, वो यूसुफ का भी दुश्मन है, वो नमाज का भी दुश्मन है, वो रिसालत का भी दुश्मन है, वो रिसालत का भी दुश्मन है। ये मजलिसें होती रहेंगी, हम रहे ना रहे, ये फर्शे अज़ाब बैठना भी इबादत है। अगर कोई इस फर्शे अज़ा पर बैठकर दुआ मांगता है तो यकीनन उसकी दुआ रद्द नहीं होगी, क्योंकि दुआ एक मांगेगा आमीन 14 मासूमीन कहेंगे, और जिसकी दुआ पर 14 मासूमीन आमीन कह दे उसकी दुआओं के क्या कहने। कि जब रसूल दुआ मांगते थे तो अपने सामने जनाब फातिमा ज़हरा को बिठा लिया करते थे और कहते थे, ऐ फातिमा दुआ मैं मांगूंगा तुम आमीन कहना, दुआ मैं मांगूंगा तुम आमीन कहना। अज़ीज़ान ग्रामी, जब एक रसूल इतनी बड़ी रिसालत का मालिक होते हुए अपनी बेटी से अपनी दुआओं पर आमीन कहवा रहा है, तो हम जैसे खाकी बंदों की दुआओं पर अगर फातिमा ज़हरा आमीन कह दे तो हमारी दुआओं के क्या कहने। सलावत नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन आले मोहम्मद ने नमाजियों से वादा नहीं किया कि तुम नमाज पढ़ो हम तुम्हारे घर आएंगे, या रोजेदारों से आले मोहम्मद ने वादा नहीं किया कि तुम रोजे रखो हम तुम्हारे घर आएंगे, या हाजियों से आले मोहम्मद ने वादा नहीं किया कि तुम हज पर जाओ हम तुम्हारे घर आएंगे। वाहिद कायनात में एक हुसैन की फर्शे अज़ा, एक ये मजलिस ऐसी इबादत है कि जहां आले मोहम्मद ने वादा किया है कि तुम कहीं भी हुसैन की फर्शे अज़ा बिछाओ, हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 14 मासूमीन उस फर्शे अज़ा पर आएंगे। सलावत पढ़ो। ये वो फर्शे अज़ा है कि जहां 14 मासूमीन का नूर उतरता है, और खुदा कह रहा है हमने इन 14 को तुम्हारे दरमियान कुरान की सूरतों में भेजा, यानी कुरान बनाकर भेजा, और उनका तारुफ भी खुदा कुछ इस तरीके से करवा रहा है। खुदा कह रहा है रसूल रिसालत का कुरान है, फातिमा तहरत का कुरान है, रैयद अली इमामत का कुरान है, हसन सखावत का कुरान है, हुसैन शहादत का कुरान है, सज्जाद इबादत का कुरान है, बाकर इल्म का कुरान है, जाफर सदाकत का कुरान है, जाफर सदाकत का कुरान है, काज़िम हिकमत का कुरान है, रज़ा रिजवान का कुरान है, रज़ा रिजवान का कुरान है, तकी तकावत का कुरान है, नकी नकावत का कुरान है, अस्करी हैबत का कुरान है। और जब इन 13 कुरानों को एक जगह कर दिया जाए तो 14वां कुरान मेहदी हादी का बनता है। सलावत पढ़ो। अज़ीज़ान ग्रामी, तो इस मजलिस का नतीजा क्या है? इबादत, इबादत, और इबादत भी ऐसी हो जो अजरे रिसालत बन जाए। अज़ीज़ान ग्रामी, नमाज अल्लाह की इबादत है लेकिन अजरे रिसालत नहीं, रोज़ा अल्लाह की इबादत है लेकिन अजरे रिसालत नहीं। कायनात में वाहिद एक अली का जिक्र ऐसी इबादत है जो इबादत तो है साथों साथ अजरे रिसालत भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आ गई कि जो लोग एतराज़ करते हैं कि शिया अली के बारे में बहुत गुलू करते हैं, जिक्र अली में आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँगा, अरे भैया क्या कभी इबादत में भी गुलू हो सकता है? अरे इबादत तो जितनी भी करो उतना ही सवाब मिलता है। इसी तरह जिक्र अली जितना भी करेंगे उतना ही सवाब मिलेगा। सलावत पढ़ो। जैसे कुरान को
पढ़ना इबादत, कुरान को सुनना इबादत, कुरान को देखना इबादत, इसी तरीके से अली का जिक्र करना इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत, अली को देखना इबादत, क्योंकि खुद रसूल ने फरमाया है अन-नज़र इला वजह अली इबादत, कि ऐ लोग के आप हजरत अली के रुख अनवर की ज़ियारत कर लीजिए, इबादत का शरफ हासिल हो जाएगा। तभी तो बाज़ों ने कहा है कि जब हजरत अली अपने घर से बाहर निकलते और लोगों के सामने आते तो लोग बर्दाश्ता और बेसाख्ता होकर कह उठते ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसी शराफत वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसे तकवे वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसे इल्म वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा बहादुर है। अभी इस बात से ये तो पता चल गया कि दुनिया वाले अली को देखकर खुदा को याद करते थे, तो क्यों ना इसका जिक्र करना इबादत हो, इनके चेहरे की तरफ नजर करना इबादत हो, इनसे मोहब्बत करना इबादत हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। लाख चाहा कि जिक्र अली मिट जाए, अली का जिक्र करने वाले इस दुनिया में ना रहे, इन्हें खत्म कर दो, इन्हें जिला वतन कर दो, इन्हें सूली पर चढ़ा दो। चुनाचे हुआ भी ऐसा ही, सल्तनतें मिट गई, हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन ना जिक्र अली मिटा, ना जिक्र करने वाले मिटे। कल भी जिक्र हो रहा था, आज भी जिक्र हो रहा है और क़यामत तक जिक्र होता रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। कहां से अली का जिक्र मिटाओगे? हर जगह अली का जिक्र मौजूद है। कौसर पर अली का जिक्र, जन्नत में अली का जिक्र, तौबा पर अली का जिक्र, ज़बान रसूल पर अली का जिक्र, ज़बान मलक पर अली का जिक्र, अंबिया में अली का जिक्र, फरिश्तों में अली का जिक्र, काबे में अली का जिक्र, मदीने में अली का जिक्र, खैबर और खंदक में अली का जिक्र, अर्श पर अली का जिक्र और फर्श पर अली का जिक्र। सलावत पढ़े। अब कुछ फिक्रे मसाइब पे और सुन लीजिए, फिर आपके सामने शबीर ताबूत बरामद होएगा। हाँ ज़दारो दिल खोल कर पुरसा दीजिएगा सैयद सज्जाद को उनके बाबा का। अरे कौन हुसैन के जो असरे आशूर लाशें उठा रहा था, पहले असहाब व अंसार शहीद हुए, फिर औलाद फातिमा की बारी आई, अली अकबर बर्छी खाकर शहीद हुए, कड़ियल जवान का लाशा उठाया, ज़ैनब की गोद खाली हो गई, मुस्लिम के बच्चे करबला में शहीद हो गए, कासिम का पामाल लाशा उठाया, अब्बास कमर तोड़ गए, अली असगर की प्यास तीर से बुझाई गई। हाँ ज़ादारो अब ज़ोहर का वक्त आया, इमाम हुसैन फिरने में आए और आवाज दी, ऐ ज़ैनब उम्मे कुलसूम रबाब उम्मे लैला, ऐ मेरी माँ की कनीज़ फिज़ा, तुम सब पर हुसैन मज़लूम का आखिरी सलाम हो। ये आवाज जैसे ही बीवियों ने सुनी, एक कोहराम बरपा हो गया। ज़ैनब आगे बढ़ी, ऐ माँ जाए तेरे इतने सदके उतारे, तेरी बला दूर न हुई। सकीना ने बाप के दामन को थाम कर कहा, बाबा बाबा मैदान में ना जाइएगा, बाबा सुबह से जो भी मैदान में गया है वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन ने कहा, सकीना मत रो, ऐ मेरी बच्ची मत रो, बहुत जल्द तू यतीम हो जाएगी, शिमर के तमाचे खाएगी, बहुत रोना है। सकीना को तसल्ली दी। अब खेमे ज़ैनुल आबिदीन में आए और फिर क्या देखा, बीमार गश के आलम में है, सूरह अलहम्द दम की, बीमार ने आंखें खोली, आपने राज़ इमामत सपुर्द के और कहा, ऐ बेटा सज्जाद जो भी मुसीबत हो वो बर्दाश्त कर लेना, मगर मेरे नाना की उम्मत के लिए दुआएं बद ना करना। आज़ादारो अब इमाम हुसैन रुखसत होकर खेमे से बाहर आए, क्या देखा जुलजना खड़ा है, एक मर्तबा मक्तल का रुख किया, अब्बास अली अकबर कासिम मोहम्मद आओ और हमें सवार करो। ये आवाज जैसे ही दुखियारी बहन ने सुनी, दरे खेमा पर आई, दुलजना की रकाब को थाम कर भाई को सवार किया। अब अली का लाल
मैदान कताल में पहुंचा और ऐसी जंग करी कि फौजे यजीद में तलतुम मच गया। इतने में एक आवाज़ गैबी आई, हुसैन बस करो, हुसैन वादा वफा करो। अब इमाम हुसैन ने जैसे जुल्फ़िकार को नियाम में रखा, तीरों की बारिश होने लगी। कोई तलवार से मारता था, कई नेज़ों से मारता था, जिसे कुछ ना मिला उसने पत्थर से मारा। अजरक मिन अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। मेरे मौला के जिस्म पर इतने तीर पेवस्त थे कि जब मेरे मौला का जिस्म सीन से जमीन पर आया है तो मेरे मौला का जिस्म ना सीन पर था ना जमीन पर। हाय हाय मेरे मौला का जिस्म तीरों पर मुअल्लक था। इन्ना लिल्लाहि व